نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب اس کی 10 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، پوری دے یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، ہیلیلویا۔ میں بات وہی سے شروع کروں گا، اپنی گواہی زیادہ بتاؤں گا، کلام کم آپ سنیں گے، اور وہ جو گواہی ہوتی ہے وہ خدا کا کلام ہی ہوتا ہے، تاکہ میں تھوڑا کلیئر کر دوں تاکہ لوگ سمجھے اپنی باتیں سنا کے پادری صاحب چلے گئے ہیں۔ میرے ساتھ جو بیتا ہے میں وہی بتاؤں گا۔ جہاں سے خدا نے مجھے نکالا ہے یہ وہ کلام کا حصہ ہے جس نے مجھے نکالا ہے۔ یہاں پہ لکھے خدا فرما رہا ہے کہ تیرے پاس اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی برکت تجھ پر برساؤں گا۔ ایک ٹائم تھا کہ جب ہم اپنی زندگی کو جی رہے تھے، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، اور وقت بیتتا گیا، خدا کے خادم آتے رہے، کلام سناتے رہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آتی پیسہ کہاں جاتا ہے، پیسے کی سمجھ نہیں آتی۔ تو خدا کے خادم نے کہا کہ تو اپنا بیج بویا کر، اپنی دے یقین پوری دیا کر۔ بیج صرف بیج نہیں، وہ کہہ رہے تھے اپنی پوری دے یقین خدا کے گھر میں لایا کر۔ اور مجھے نہیں سمجھتی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دے یقین ہوتی کیا چیز ہے۔ آج بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں سمجھے کہ دے یقین اپنی کمائی میں سے اس کو کتنا حصہ نکال کے خدا کے گھر میں لانا ہوتا ہے۔ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں تو اس میں سے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 10 روپے خدا کے گھر کے لیے۔ اگر آپ 1000 کما رہے ہیں تو اس میں سے 100 روپیہ خدا کے گھر کا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ہے۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم سے زیادہ جو بلیس ہے وہ کیوں بلیس ہے، جو مسیحوں سے بھی زیادہ اوپر بلیس ہے وہ کیوں بلیس ہے، کیونکہ انہوں نے ہم سے زیادہ خدا کو دیا ہے۔ جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے جب پہلی دفعہ اپنی دے یقین دی تھی تو وہ 650 روپیہ تھی۔ اب یہ بات کافی پرانی ہے۔ اس وقت اگر میں دے یقین نہ دیتا، آدھی دیتا، تو یہاں پہ میرا بیٹا پارس اگر ہے تو ذرا سامنے آئے تاکہ لوگ دیکھیں اس کو۔ اب اگر اس کو میرے ساتھ کھڑا کریں گے تو یہ اب مجھ سے بڑا ہو چکا ہے۔ اگر اس کی عمر پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ بیٹھ جائیں، شکریہ۔ اب بات کو سمجھانا جو چاہتا ہوں کہ اگر میں اس دن ان دنوں میں اپنی دے یقین آدھی دیتا تو پورے مہینے کا جو دودھ تھا نا وہ اس بچے کو پلایا جا سکتا تھا، اور وہ دودھ آدھا کلو ہر روز آتا، اس کو پلایا جاتا۔ لیکن میں نے کہا میں اس کو دودھ نہیں بلکہ میں اس کو خدا کا کلام دوں گا، اس کے اندر، اس کے گھٹنوں میں، اس کی ہڈیوں میں خدا کے کلام کو دوں گا، اور میں اپنا حصہ خدا کو دوں گا۔ خدا اس کی ہڈیوں میں جان ڈالے گا۔ ہاللیلویا۔ اور خدا نے اس کی ہڈیوں میں اتنی جان ڈالی کہ خدا نے میرے بیٹے کو مجھ سے بھی بڑا کر دیا۔ ہاللیلویا۔ ہو سکتا ہے میں اس کو دودھ پلاتا یہ موٹا تازہ ہوتا، لیکن جس طرح سے خدا اس کو اونچا کرنا چاہتا اس طرح سے یہ اونچا نہ ہوتا۔ ہاللیلویا۔ میں اپنی گواہی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سیکھے سمجھے۔ 650 سے شروع کیا اور آج میں بتانا چاہتا ہوں میں اپنی دے یقین اپنے اسپرچل فادر کی چرچ میں بھی بولتا ہوں، اور اپنی اس کو پھر ایک اور دے یقین میں منسٹری میں بھی بول رہا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اس کا مطلب کہ میں دے یقین نہیں، میرا 20% اس چرچ میں آتا ہے، آدھا اس چرچ میں رہ جاتا ہے اور آدھا منسٹری میں چلا جاتا ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوں اور ان کے ساتھ بھی جڑا ہوں، کیونکہ یہاں سے دعائیں میرے
اور وہاں سے بھی دعائیں میرے لیے نکلی ہیں. تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنا بیج، اپنی دے یقی کہاں بونی چاہیے. لکھا ہے پوری دے یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. ہاللیلویا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دے یقی صرف اور صرف اسی ذخیرہ خانے میں جا سکتی ہے جہاں سے آپ برکت لے رہے ہیں، جہاں سے آپ کے لیے پیچھے ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں. آپ آدھی رات کو سو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے استاد، آپ کے پاسٹر آپ کے لیے رات دن دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ذخیرہ خانہ میں دے یقین کو لانا یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسی میں ہماری برکت ہے. اور میں وہ شخص تھا کہ جس نے جب دے یقین شروع کی تو ایک اور گواہی دینا چاہتا ہوں. میرے دوست جب میرے گھر میں آتے تھے تو ان کو چائے پلانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا. ایک دوست میرے گھر میں زبردستی گھس گیا. میں بلاتا نہیں تھا، میں نے کہا نہیں میرے گھر میں مت آنا. میں بلاتا نہیں تھا، ایک دوست زبردستی آ گیا، کہتے آج دوپہر کو کھانا آپ کے گھر میں کھائیں گے. میں بازار گیا، میں نے دکاندار سے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب ایک انڈا دے دو، کل پیسے دے دوں گا. کہتے چل بات کدھر سے تجھے انڈا دے دے. اپن اس وقت اس زمانے میں 3 روپے کا انڈا آتا تھا اور میری حیثیت نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی کہ میں ایک 3 روپے کا انڈا خرید سکوں. کلیسیا آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کو دینا شروع کیا. آج صرف خدا نے اس کو تو 3 روپے کا تھا، اس کے بعد میں پیدل سفر کرتا. خدا نے سائیکل دی، موٹر سائیکل دی، گاڑی دی، گھر دیا، سب کچھ خدا نے دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر وہ خدا مجھے پیدل سفر کرنے والے کو ایک 3 روپے کا انڈا خریدنے کی اوقات دی تھی، آج خدا نے لاکھوں روپیہ خدا نے مجھے دے دیا ہے. آپ کو بتانا چاہتا اگر وہ مجھے دے سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. وہ صرف میرا خدا نہیں ہے، وہ آپ کا بھی خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ سب کچھ پرووائڈ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ اس کے ساتھ چلیں گے، اگر آپ اس سے آج وعدہ کریں گے، اگر آج آپ اس سے کمٹمنٹ کریں گے. میں نے کمٹمنٹ کی، میں نے کہا نہیں. اچھا بیچ میں یہ بھی بتا دوں، ہوتا یہ ہے کہ بیچ میں چلتے چلتے کچھ ٹائم ایسا ہوا کہ مجھ سے دے نہیں پایا. اور پھر ہوا کیا، بڑا اچھی گاڑی چل رہی تھی زبردست، اور جس مہینے ہم نے نہیں دیا اس مہینے ہم نے 2 دفعہ راشن خریدا، لیکن پھر بھی کم ہو گیا. پھر تیسری دفعہ خریدنا پڑا. اس کے بعد پھر پراپر وعدہ کیا خدا ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہاللیلویا. اور ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، کلیسیا خدا نے بہت برکت دی ہوئی ہے. آج کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اگر آپ سے کہوں کہ ہاتھ کھڑا کریں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں. آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پیسے آپ نے ادھاری لوگوں سے لیے ہوں گے. آج کلیسیا کے اوپر بہت سارا قرضہ ہوتا ہے. آج میں آپ کو صرف قرضے سے نکالنے کا آپ کو ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور آپ اپنا پیسہ کماتے ہیں، وہ قرضہ آپ کے اوپر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں اور آپ پیسہ جمع نہیں کر پا رہے، میں بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے جتنی مرضی دعائیں کر دو. اگر آپ 1 گھنٹہ دعا کر دو، آپ 10 گھنٹے دعا کر کے دیکھ لو، قرضہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. قرضہ دعاؤں سے نہیں جانے والا. آپ کو بتاؤں دعاؤں سے خدا آپ کے لیے راستے کھول سکتا ہے پیسے کے، لیکن پھر بھی آپ کا قرضہ نہیں ختم ہوگا. دعاؤں سے آپ کے اور مسئلے حل ہو سکتے ہیں، قرضہ نہیں ختم ہو سکتا. قرضے کو ختم کرنا ہے، غریبی کو ختم کرنا ہے، تو غریبی صرف اور صرف بیج بونے سے ختم ہوتی ہے. ہاللیلویا. غریبی کو ختم کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے غریبی کو ختم کرنے کا. بیج بونا شروع کرو، دائیتی دینا شروع کرو، آپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا. آمین. لکھا ہے کہ ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو. اب بات آ گئی امتحان کرنے کی. اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے جانچنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پرکھنا. آپ خدا کو پرکھ سکتے ہو، آپ خدا کو جانچ سکتے ہو، آپ خدا کو اس کی آزمائش کر. خدا خود کہہ رہے، لیکن ایک جگہ پہ خدا کہتا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش
ना कर। पर खुदा कहता है मेरे हुजूर अपनी दया की ला और पूरी ला और मेरी आजमाइश कर। मैंने जब खुदा को देना, मैं जब बीज बोता था, बीज बोने के पादी साहब मेरे लिए दुआ करते, खुदावन इसको बरकत दे, और नीचे मैं दुआ करता, खुदावन मैंने तेरे कलाम में लिखा है कि तू मुझे आजमा। खुदावन मैंने तेरा कलाम जो तेरे कलाम में लिखा है ज़ख़ीरा खाना मिला, मैंने तेरा कलाम पूरा कर दिया है, और अब तू अपना कलाम कर पूरा कि मेरे घर में रखने को जगह न हो। खुदा ने वाकई कलाम पूरा किया। हालेलुया। अगर खुदा मेरी जिंदगी तब्दील कर सकता है, मुझे बचा सकता है, मुझे ऊंचा कर सकता है, मेरे कर्जे खत्म कर सकता है। मैं इसी चर्च में लोग बैठे हुए हैं जिनसे मैं उधारी पैसे लेता था, यहीं से मैंने शुरू किया है, और यहीं पे लोग शायद हो सकता है कुछ लोग बाहर बैठे हो, कुछ अंदर बैठे हो। मैं 100 रुपया लोगों से मांगता था, मैं 200 रुपया मांगता था कि मुझे दे दो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब से खुदा को देना शुरू किया, खुदा ने वो जो मैं लोगों से मांगता था, आज मुझे कॉल्स आती हैं, मैं इन कानों से सुनता हूँ, मुझे फोन लोग करते हैं कि पादरी साहब कुछ पैसे नहीं, चंद लाख रुपए दे दो। हालेलुया। कोई एक शब्द, मेरे खानदान के लोग मुझसे जब कॉल करते वो कहते नहीं, वो 10-20 हजार से नीचे तो वो ठहरते नहीं है, ऊपर 50,000 40,000 इससे ऊपर लोग हमसे मांगते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, खुदा तुम्हारा कर्जा खत्म कर सकता है। आमीन आमीन हालेलुया। अगर वो मुझे जो लोगों से 10-10 20-20 रुपए, ये ज्यादा रकम नहीं है, लेकिन इसके लिए भी हम तरसते थे कि काश कोई हमें 100 रुपया दे दे, काश कोई हमें 500 दे दे और हमारे कुछ दिन गुजर जाएंगे। लेकिन होता ये था कि बाज़ औक़ात लोग देते थे और बाज़ औक़ात लोग नहीं देते थे। लेकिन जब खुदा ने समझाया कि नहीं पुत्र, तू जब तक बीज नहीं बोएगा, लिखा है तू जो बोएगा वही आपने बोया। कि अगर प्रेयर बोई है तो प्रेयर का रिजल्ट कुछ और है, अगर रोजे बोए हैं तो रोजों का रिजल्ट कुछ और है, अगर हदिया बोया है तो हदिये का रिजल्ट कुछ और है, अगर तयकी बोई है तो तयकी का रिजल्ट कुछ और है। हालेलुया। कलीसिया, ये बात ध्यान से समझिएगा कि आपका बीज बोना जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी में अगर बीज नहीं है, अगर तयकी नहीं है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। नहीं तो मेरी इस बात को याद रखना, लिख लेना, आज की डेट अपने जहन में रखना, आज से देना शुरू करो, आज से अभी से देना, इस महीने खुदा से अहद बांधो। और ऐसा नहीं होता, आज आप अगर बीज बोते हैं, गंदम बोते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आज ही पौधा शाम तक उगेगा, उसके ऊपर सिट्टे लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो बीज पहले मर जाता है, उस बीज को पहले मरना पड़ता है, और जब तक वो बीज, वो गंदम का बीज, वो कोई भी बीज आपने बोया है, जब तक वो मर नहीं जाता, और मरने के बाद उसके अंदर से एक कॉम्पन निकलती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, एक टाइम आता है उसके ऊपर फूल निकलते हैं, और फिर जाके वो फूल से उसके बीज बनते हैं, और तब जाके एक बड़ी फसल की कटाई होती है। हमने 1 महीना दिया, 2 महीने दिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, मैं लगातार 2 साल तक तयकी जब बोता गया तो टस से मस नहीं हुआ कुछ भी। मैंने एक दिन पादरी साहब किससे कहा, मैंने कहा बाबा जी ये कब ठीक होगा? आपने तो कहा था कि दो खुदा आसमान के दरीचे खोल देगा, आसमान को फाड़ कर बरकत बरसाएगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। इन्होंने कहा सब्र कर, खुदा बरकत देगा, और वाकई सब्र किया, खुदा ने बरकत दी। एकदम से नहीं होगा, हो सकता है आपके हालात और टाइट हो जाए, क्योंकि आप 9,000 में आपके घर गड़बड़ चल रहा है, 9,000 में से 900 इधर चला गया, आपके पास अब 8,000 रह गया है, 8,100 रह गया। अब क्या होगा? जो 9,000 से नहीं चला था वो 8,000 से कैसे चलेगा? आपको बताओ, बीज को मरना पड़ेगा। जब तक मैंने अपने आप को मारा नहीं, बीज बो रहा था, बीज बोता जा रहा हूं, लेकिन अंदर नहीं मारा। और जब ये समझ आ गई, नहीं अब खुदा, मैं जब ये बात सीखी कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है, अब खुदा अपना कलाम पूरा कर, फिर खुदा ने बीज को उसके ऊपर फल लगाना शुरू कर दिया। हालेलुया।
अपना मारना पड़ता है। ये बीज बोना, ये दया यकी देना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये हर कोई नहीं बोल सकता। लेकिन जब तक आप अपने आप को मारेंगे नहीं, वरना मैं बताऊं लोगों से मांगते फिरेंगे, वरना लोगों से उधार ही मांगते फिरेंगे। अब अपनी जिंदगी पे गौर करो, कितने उधार मांग रहे हैं, कितने लोगों से मांगते हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं कब कहां लोगों से उधार मांगता हूं। अगर उधार मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका आप बीज सही जगह पे नहीं बो रहे, आप बीज कहीं और बिखेर रहे हैं। अच्छा, कुछ ईमानदारों की आदत होती है कि कुछ बड़ी चर्च को देखकर ना वहां पे बीज वो तय की ले जाते हैं। ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। आपके पास खुदा ने आपको बरकत दी है, आपको पैसा दिया है, तय की अपनी चर्च में, बड़ी चर्च में बीज बोने के खिलाफ मैं नहीं हूं, मैं किसी भी बड़ी चर्च के खिलाफ नहीं हूं। आपको लगता है वहां से आपको बरकत मिल रही है, आप टीवी में बैठ कर उसे बरकत देते हैं, इससे कोई इसके खिलाफत नहीं मैं करा, पर वहां पे जाओ, लेकिन वहां पे स्पेशल बीज लेके जाओ कि अपने चर्च में, क्योंकि आप यहां से आपके हर मसला जो है वो यहां से हल होता है। आपकी हर प्रॉब्लम का हल आपके लिए दिन रात आपके लिए अवेलेबल यही चर्च होती है। हालेलुया। मैंने अपनी चर्च को बताया था कि दिन रात जो अवेलेबल, दिन रात जो आप कॉल करते हैं, आपकी एक कॉल पे आधी रात 1 बजे 2 बजे दोपहर को अगर कोई चर्च आती है तो आपके अपनी चर्च के पास्टर आते हैं और कोई नहीं आता। मैं उनके खिलाफ नहीं, वहां पे बीच बो, लेकिन वहां पे स्पेशल बीज अपनी कमाई में से स्पेशल, लेकिन दया की अपने चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ आ रही है आपको? ये बात दे ध्यान समझनी है कि खुदा कहता है कि रखने को जगह तेरे पास जगह ही नहीं होगी, इतनी बरकत बरसाऊंगा आपके पास। हमें आपको ये बात समझनी है कि हमारे पास खुदा कहता है रखने वास्ते भी जगह नहीं है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, ये बात मैंने अपने उस्ताद से सीखी और इन्होंने फिर अपने उस्ताद से बात सीखी। आप विजिट करके देख लो, टोक चौधरिया में, मजराबाद में सबसे बड़ी चर्च आपको यही मिलेगी, सबसे बड़ी चर्च यही है, क्योंकि इन्होंने सीखा है कि सीक्रेट ये है आगे बढ़ने का, सीक्रेट ये है बरकत पाने का, और फैल रखने की जगह नहीं है। समझ नहीं आती कलीसिया ये बिठाएं किधर। पहले एक बिल्डिंग बनाई, फिर कलीसिया बढ़ गई, दूसरी बढ़ाई, वो भी भर गई, तीसरी बिल्डिंग बना ली, वो भी बढ़ गई। हालेलुया। कुछ समझ आया कि नहीं आया? रखने को खुदा कहता है तेरे पास रखने को जगह नहीं। इनके पास, अब मेरे उस्ताद के पास कलीसिया को बिठाने के लिए जगह ही नहीं है। हालेलुया। 40-50 तो बाहर खड़े होंगे रखने को, हमारे पास भी रखने को जगह नहीं है। हमारे पास जितना हाल अंदर है वो सारा फुल है, बाहर लोग बैठे होते हैं। हालेलुया। हम जहां भी गए, जिस जगह हमें एक जगह से निकाला जाता है दूसरी जगह चले जाए, वहां से निकालते हैं तीसरे, जिधर से लोग निकालते हैं और वो जगह फुल होती है और बाहर लोग खड़े होते हैं। हालेलुया। बहुत बड़ी कलीसिया नहीं है, लेकिन जितनी जगह हमारे पास है, खुदा कहता है तेरे पास रखने को जगह, जितनी जगह उससे ज्यादा लोग हैं। हालेलुया। देखिए हमारी बरकत तो आप है, मेरी बरकत कलीसिया की, जो पास्टर के पास जो बरकत होती है उसकी कलीसिया होती है। आपको खुदा जो बरकत देगा, खुदा कहता है तेरे पास रखने को जगह नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन कलीसिया आप क्या बोलते हैं? अगर आप नहीं बोलते तो फिर आपका हाथ ऐसे रहेगा, अगर आप बोलते हैं तो बोलने वाले का हाथ ऐसे होता है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। आप खुदा के अजीज बनना चाहते हैं या नहीं? अगर बनना चाहते हैं तो खुदा कहता है बोया कर, खुदा कहता है बोया कर। अगर तू बोएगा तो काटेगा, जो बोता नहीं है वो काटने की उम्मीद है। आज बहुत सारे नौजवान हैं, वो ख्वाब देखते हैं, उनके ख्वाब, उनके विजन, उनके ख्वाब कि उनके पास बड़े बड़े आईफोन हो, बड़ी सी फरारी हो, बड़ा सा बंगला हो, उसके बहुत फैक्ट्रियों का मालिक हो। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि तू बोता क्या है, वो बोता कुछ भी नहीं है, वो बोना नहीं चाहता। आज पूरी दुनिया कंट्रोल यहूदी क्यों कर रहे हैं?
यहूदी क्यों दुनिया में सबसे बेस्ट कंपनियों के मालिक हैं? उनकी बड़े बड़े ब्रांड क्यों हैं? आपके मुल्क में उनके बड़े बड़े ब्रांड हैं, पूरी दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनीज उनकी हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया जाता है, उन्हें अपने बच्चों को सिखाते हैं, अगर तुझे 10 रुपए मिले तो 10 रुपए में 1 रुपया खुदा के घर में दे, और 1 रुपया खुदा के घर में हदिया, और 1 रुपया तेरी इन्वेस्टमेंट, और बाकी तेरा खर्चा है। अगर मैं पूछूं कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो शायद कोई। बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि मैं अपने बेटों को यही सिखाता हूं, यानी मैं पादरी सकून और भाई मयून की बात कर रहा हूं। आज अगर आप इनकी जॉब्स, इनकी इनकम देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा ने कैसे ब्लेस किया। उसके पीछे कारण आपके बीच में पले हैं, आपके बीच में ये खेलते रहे हैं, आपके बच्चों के साथ खेलते रहे हैं। आप अपने बच्चों, आपका बेटा इनके साथ खेलता रहे, उसका इनके साथ मुआयना करना, आपको फर्क नजर आएगा। फर्क सिर्फ यही है, इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है, जैसे हमें सिखाया, इनको भी सिखाया कि खुदा को देने में ही बरकत है, खुदा को देने ही में बरकत है। और इन्होंने बोला आज ये भी प्लस है, आज ये भी कामयाब है। हालेलुया। मांगना नहीं पड़ता इनको, देने वाला जो होता है वो हम पंजाबी से हमारे दादाजी कहते थे कि देन नाल घटदा। मेरा वक्त दादाजी के साथ बहुत गुजरा है, वो मुझे पंजाबी में बड़ा सिखा दे, पुत्र देन नाल कदी घटिया नहीं, देन नाल वधदा है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो 10,000 चर्च, 10,000 किधर चला जाएगा? तो चर्च वाले क्या करते हैं? मेहनत तो हम कर रहे हैं। अगर मेरी दया की देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आप कमाते कितना होंगे। आपको बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री में मुझसे ज्यादा बड़े बड़े खादिम हैं जो मुझसे ज्यादा बोलते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं। क्यों मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अपना बहुत, इतना आसान नहीं है मेरे लिए बोलना। आपके लिए आसान हो सकता है, मेरे लिए आसान नहीं है, मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है। जिन मुश्किल हालात में मैं बीज बो रहा हूं, शायद ही आप उस मुश्किल में होंगे, शायद ही आप उस परेशानी में होंगे, लेकिन मुझे फिर भी मालूम है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने खुदा के कलाम, खुदा से वादा किया है, और खुदा के कलाम पे हाथ रख कर मैंने, मेरी वाइफ ने इस पे हाथ रखा था कि मैंने खुदा से वादा किया था कि मरते दम तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैंने अपनी वाइफ से खुदा की हुजूरी में वादा किया था, और कहां पे हाथ रख के? बड़े जोड़ों ने खुदा से वादा किया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका जो हम सफर है ना, आपने खुदा से वादा किया है, इस कलाम पे हाथ रख के, खुदावन मैं इसे कभी छोड़ूंगा नहीं। और जब जो न्याय का खुदा से वादा किया था, वो भी मैंने और इसने इस पे हाथ रख के कि खुदा को सदा देते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। कलाम खुदा में याकूब के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया बड़ी ब्लेस है। ये बरकत देना आसान काम नहीं है। पैदाइश की किताब उसका 28 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, और याकूब ने मन्नत मानी और कहा अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं उसमें मेरी हिफाजत करे, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा दे, उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया। अब जो शरीयत है ना वो मूसा पे नाज़िल हुई है, और दैयकी का जो हुक्म है ना वो मूसा को दिया गया था, लेकिन याकूब को खुदा ने ये हुक्म नहीं दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये जो दैयकी है ये तो पुराने अहद में की, ये तो शरीयत की तालीम है।
यकूब खुदा से खुद कमिटमेंट कर है, खुद खुदा से मन्नत मान रहे हैं कि खुदावंद जो कुछ तू मुझे देगा मैं जरूर ही उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। और जो पत्थर मैंने गाड़ा है, ये जो पत्थर मैंने जमीन पर जो उसके सर के नीचे रखा हुआ था, सोचो थोड़ी देर कलीसिया, सोचो यकूब जब अपने बाप के घर से निकला था, सिर्फ एक गधा था जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, सर रखने के लिए नीचे तकिया। मेरे पास ऐसे ऐसे कलीसिया में लोग हैं, जब मेरे पास आए थे ना तो नीचे बिछाने के लिए चटाई नहीं थी, नीचे बिछाने के लिए चटाई नहीं थी। आज वो अपनी जगह खरीदने के चक्कर में, एक बेटे के लिए दुकान नई दुकान बनाने के चक्कर में, और मुझे मिनिस्ट्री करते हुए अभी 7 साल हुए, 7 ईयर। 7 साल पहले वो मेरे साथ जुड़े, दयायकी देना शुरू की, आज वो अपनी जगह खरीदने के चक्कर में और प्लस अपने बेटे के लिए वो एक दुकान खरीद रहे हैं कि ताकि उनका बेटा वहां पे कारोबार कर सके और दूसरा बेटा एक हाईएस्ट वो पोस्ट पे बैठा हुआ है। और उस वक्त उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। क्या हुआ उनकी जिंदगी में? एकदम से खुदा ने उनको बरकत दी, एकदम से नहीं हुआ, उन्होंने खुदा के साथ चलना शुरू किया। यकूब कहता है खुदावंद जो तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दूंगा, जरूर दूंगा। मन्नत मानी है उसने। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो यकूब ने अपने भाई को कुछ गिफ्ट दिए थे, कुछ गिफ्ट। मुझे मालूम है आप बहुत सालों से चर्च आ रहे हैं तो पढ़ने की जरूरत है। वहां पे 200 भेड़ बकरियां हैं, 200 भेड़े हैं, और मैं रात को उनको चेक करा था, वो 8 करोड़ रुपए के करीब मालियत है। 8 करोड़, अगर नहीं तो कोई भी नौजवान उसको इंटरनेट पे डाल के चेक कर सकता है, ये 8 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकते हैं। और वो किसी के लिए है? वो उसने अपने बड़े भाई के लिए लेके गया है। सोचो आप अपने भाई को गिफ्ट देते हो, अपनी बहन की बेटी की शादी पे गिफ्ट देते हो, या अपने भाई के बेटे की शादी पे कितना खर्चा करोगे? आपके पास कितना पीछे आप सारा कुछ उसको बेच के दे दोगे? नहीं, खाली हाथ गया, नीचे सर के नीचे रखने का तकिया नहीं है, लेकिन आज करोड़ों रुपए का गिफ्ट अपने भाई को दे रहे हैं। 20 सालों में ये सब कुछ हुआ था, कैसे हो गया? खुदा के साथ चलने से, खुदा को देने से ये सब कुछ हुआ है। आपको क्या लगता है वो सिर्फ प्रेयर करता होगा, वो सिर्फ दुआएं करता होगा? वो बीज बो रहा, कहता है मैं खुदावन, उसने शुरुआत ही दयाकी से की है, शुरुआत ही खुदा के घर से की। खुदावन यहाँ पे पहले नंबर पे तेरा घर होगा, और दूसरी बात मैं तुझे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर दूंगा। हालेलुया। आज कलीसिया आपको मैं ये समझता हूं आप बरकत पा रहे हैं। आमीन। मैं फील कर रहा हूं आप में से बथेरे दयाकी देंगे। आमीन। क्योंकि आपको गरीब नहीं रहना, आपको गरीबी तोड़नी है, आपको गरीबी खत्म करनी है। हालेलुया। गरीबी से गरीबी मैनेज नहीं की जाती। गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, आप गरीब हैं कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप इसे तोड़ सकते हैं, आप इसे खत्म कर सकते हैं, और इसे यीशु के नाम से खत्म करेंगे। हालेलुया। करोड़ों रुपए का मालिक है, आज अरबों रुपए का मालिक है, पर कैसे? खुदा को देने से। आपने KFC का नाम सुना होगा, लेकिन आपने ऐसा ब्रांड है जिसका मैं नाम लूंगा, आप चिक-फिल-ए। वो KFC कुछ भी नहीं है। आपकी नजर में KFC बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चिक-फिल-ए इससे बहुत ऊपर है। KFC महीने में जो कमाता है ना, चिक-फिल-ए 1 हफ्ते में कमाता है। पर उसकी कमिटमेंट, उस नौजवान की कमिटमेंट थी कि उसने, ऐसे जैसे आप बैठे हैं, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, इफ्तिताह वाले दिन उसने ऐलान किया कि संडे को चिक-फिल-ए की हर एक ब्रांच बंद होगी, और क्रिसमस वाले दिन बंद होगी, ईस्टर पे बंद होगी, और सालाना शुक्रगुजारी पे बंद होगी। आधे बिजनेसमैन भाग गए थे,
اور اس نے خدا سے وعدہ کیا خداوند جو کچھ کماؤں گا اس کا 10واں حصہ تجھے دوں گا. آج اس کا 50% سے بھی اوپر خدا کے گھر میں جاتا ہے. پوری دنیا میں اس کی چینیں چل رہی ہیں. ہاللیلویا. پوری دنیا میں وہ مشہور ہے. اپنے شہر میں نہیں، جب افتتاح ہوا تھا تو اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، آج پوری دنیا میں وہ مشہور ہے. پتہ ہے کیوں؟ خدا کو بیچ بونے سے. ہم غریبی سے مینج کرنا سیکھتے ہیں. میں نے آج تک کبھی بھی اپنے کسی رشتے، جب سے خدا کے ساتھ خدا کو بیچ بونا شروع کیا ہے، کبھی کسی رشتے دار، کبھی کسی دوست کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. کوئی سوچ سکتا ہے میں نے ابھی بھی لوگوں سے پیسے لینے؟ ابھی ان دنوں میں بھی، جن دنوں میں میرے گھر میں آپ سب واقف ہیں، میں اپنی وائف کو جان بوجھ کے یہاں پہ لایا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں، سیکھیں یہ محبت ہے. ہاللیلویا. میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور میں نے اپنے خدا کے کلام پہ ہاتھ رکھ کے اس سے وعدہ کیا ہے میں تجھے دھوکہ نہیں دوں گا، میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. کیسے بھی حالات کیوں نہ، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ہاللیلویا. اس کو لانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ خدا کیسے بھی کیوں نہیں ہلاتے ہیں، لیکن خدا کے کلاموں سے، خدا کے حکموں سے کبھی ہم نہیں مڑیں گے. ہاللیلویا. کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو کلیسیا، آپ کو یہ باتیں وہاں سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں برکت میں جانا ہے. ہاللیلویا. میرا ٹاپک نہیں ہے وہاں پہ، لیکن میں نے جان بوجھ کے 1 سیکنڈ کے لیے سے گزر گیا تاکہ جو کپلز ہیں وہ بھی سمجھ سکیں کہ محبت آخری سانسوں تک ہوتی ہے، وعدے آخری سانسوں تک ہوتے ہیں. آمین. سو کلیسیا، آپ کو یہ بات سمجھنی ہے، آپ کو بیچ بونا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح نے ایک معجزہ کیا تھا. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوگا؟ ایک یسوع مسیح نے ایک معجزہ کیا تھا، اور اس معجزے میں یہ تھا، مقدس متی اس کا 14 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، ہم 16ویں آیت پڑھیں گے. یسوع نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو. انہوں نے اس سے کہا یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں. اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لاؤ. یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ جو روٹیاں اور جو وہ مچھلیاں تھیں، یہی واقعہ جب دوسری اناجیل میں پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ روٹیاں اور مچھلیاں کسی اور کے پاس نہیں تھی. یہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کے پاس تھی، اور اس کو روٹی اس لیے دی ہوگی اس کی ماں نے کہ تو کروسڈ پہ جا رہا ہے، تو بڑی میٹنگ پہ جا رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ میٹنگز لمبی ہوتی تھی. یسوع کی میٹنگ بڑی لمبی، اور اندھیرا ہو جائے گا، لیٹ ہو جائے گا، تو راستے میں آنے جانے میں تجھے بھوک لگے گی، کھا لینا. اب اس بچے نے جب پتا چلا کہ یسوع کھانے کی بات کرے ہیں، یسوع روٹی کی بات کرے ہیں کہ ان لوگوں کو روٹی دی جائے، بچہ آتا ہے کہتا ہے یہ روٹی میرے پاس ہے. اور جب وہ روٹی بچہ پیش، ایک بچے کی قدر دیکھو، یہاں پہ یہ بچے کی تمثیل اسی لیے دی گئی ہے، وہ بچے کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو سکھانا ہے نا وہ بچے کو سکھاؤ. اپنے چھوٹے بیٹے، اپنے چھوٹے لڑکے کو سکھاؤ تاکہ جب وہ بوڑھا ہو جائے نا اس راہ سے کبھی مڑے نہیں. اور خوبصورت بات یسوع نے کی ہے کہ وہ جو روٹی ہیں وہ میرے، یسوع نے کہا وہ میرے پاس لاؤ. اس سے پہلے کہ وہ روٹیاں لوگوں تک جاتی، اس سے پہلے کہ وہ روٹیاں شاگرد کھاتے، اس سے پہلے کہ وہ روٹیاں کلیسیا کے بزرگوں تک جاتی، اس سے پہلے کہ وہ عوام میں جاتی، لوگوں کے پاس جاتی، یسوع نے کہا سب سے پہلے وہ روٹی میرے پاس لاؤ. تم اپنی روٹی جو کماتے ہو وہ
सबसे पहले किसको देते हो? सब्जी वाले को देते हो, राशन वाले को देते हो, किराएदार को देते हो, किसको देते हो? अपनी रोटी सबसे पहले खुदावंद को दो और खुदा उस रोटी में बरकत देगा। इतनी बरकत लोग खाएंगे, शकील खाएंगे, सब खाएंगे और बच जाएगा। हालेलुया। उस रोटी में इतनी बरकत आएगी, तुम और तुम्हारा कबीला सब खाकर शेर और अशुद्ध होंगे, लेकिन वो रोटी इतनी बच जाएगी कि जितनी तुमने खुदावंद को पेश की थी उससे ज्यादा वो रोटी बचेगी। हालेलुया। हमारे पास इसीलिए नहीं बचता क्योंकि हम अपनी रोटी किसी और को पहले देते हैं। अपनी रोटी पहले किसको देनी है? खुदावंद को आज के बाद। हालेलुया। आप अनाज कमाते हैं, आपका खेती बाड़ी का काम है, आपका जानवरों का काम है, आपका रुपए पैसे का काम है, कुछ भी है, जैसी भी आपकी इनकम है, सबसे पहले खुदा को दो। देखना, सबसे पहले खुदा को देने का मकसद ये होता है, बाद में भी आपने देनी है, पहले भी देनी है, पर फर्क है। फर्क ये है, पहले में देने में फर्क ये है कि आप खुदा को पहले ऑनर करें, खुदा को इज्जत दे रहे हैं, और जो खुदा को इज्जत देगा खुदा उसे इज्जत देगा। हालेलुया। मैं समझ रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं आप बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि आप में से गरीबी कईयों की गरीबी खत्म होने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप ने बीज बोया, आज उनके बच्चों की कंपनियां स्टार्ट हो चुकी हैं। आमीन। मेरी मदर बीज बोती थी, मेरी माँ बीज बोती थी, आज उसके बच्चे कंपनियों के मालिक हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। मंडे को उस कंपनी का हमें लेटर मिल जाएगा, वो सब कुछ ओके हो चुका है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि हम जैसे लोग जो 3 रुपए का अंडा नहीं खरीद सकते थे, आज कंपनियां खड़ी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूं कि बीज बोने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, कभी नेवर। हो ही नहीं सकता कि खुदा तुम्हें शर्मिंदा ना दे। खुदा तुम्हें ऊंचा करेगा, सर बुलंद करेगा, और लोग तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले बन जाओगे। आमीन। कलाम लिखा, तू मेरे हुक्मों पर अमल कर तो तू कौमों से कर्जा लेगा नहीं, कौमों को कर्जा देगा। कर्जा देने वाले आप बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैंने कहा आप कर्जा लोगों को देने वाले बन जाएंगे। लोग आपसे 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक लोग आपसे कर्जा लेंगे और आप हंसी खुशी उनको देंगे। आमीन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिसका घर का गुजारा नहीं चल रहा, मैं आपको कह रहा हूं, आप 10 लाख लोगों को कर्जा दोगे। आमीन। हो सकता है इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने खड़ी कर दी है, कैसे खड़ी है? आपके बीजों से हुई है। आमीन। आपने इस बिल्डिंग में बोया है, इसलिए ये खड़ी है। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूछो जाके उनसे जिनके पास बिल्डिंग नहीं है, ये पूछो जिनकी जो किराए पे जो कर रहे हैं। ये बहुत बरकत है, ये बरकत है, ये ब्लेसिंग है। खुदा इसी तरह तुम्हारे घर भी बनाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदा इसी तरह कुछ सालों के अंदर तुम्हारे घर बनाएगा अगर तुमने बीज बोना शुरू कर दिया। खुदा ने मुझे दिया, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया, मैंने अपना घर खुदा को दिया। आपको सबको पता है, खुदा ने तो मुझे घर दे दिया था, मैंने फिर रिटर्न खुदा को दे दिया। मैंने कहा खुदा नहीं, पहले तेरा घर बनाएंगे, बाद में सब कुछ करेंगे। आमीन। खुदा बहुत गयूर खुदा है। ऐसा नहीं है खुदा के पास कोई तलवार है, तुम नहीं दोगे तो खुदा मारेगा, ये करेगा, वो करेगा। खुदा उस तरफ से बस जो खुदा के वादे हैं, फिर वो आपकी जिंदगी में खुदा सजा नहीं देता, लेकिन खुदा तुम्हें ऑर्डर करके दे और चेक कर। खुदा कहता है दे और आजमा। क्या आप आजमाइश कर सकते हैं खुदा की? भाई हम तो करते थे, हम तो कहते खुदावन तेरा कलाम पूरा किया है, अब तू अपना कलाम पूरा कर। और उसके कलाम लिखा है, खुदा अपने कलाम को पूरा करने में देर नहीं कर। अगर तुम देर करोगे तो फिर वो भी देर करेगा, अगर आप जल्दी करेंगे तो खुदा भी जल्दी करेगा।
हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।